सलाम एंड वेलकम टू द शो सना पाकिस्तानी। वाशिंगटन डीसी में और अमेरिका के दूसरे इलाकों में और दूसरे शहरों में तो मैं आपको बहुत घुमाती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ खाने पीने की बात भी होनी चाहिए। आज के इस शो में मैं आपको एक ऐसे फूड आइटम के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी शुरुआत तो शायद अमेरिका से हुई, लेकिन अब दुनिया भर में उसे पसंद करने वाले और उसे खाने वाले बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं हम स्पेशली डोनट के बारे में। आज वाशिंगटन डीसी के ज़ीक्स डोनट में मैं आपको लेकर आई हूँ और ये दिखाऊंगी कि डोनट्स आखिर बनाए कैसे जाते हैं और आजकल डोनट्स की कितनी वैरायटी अमेरिका में मौजूद है। तो आइए मेरे साथ चलें। So we have Stephanie, who is the manager of Zeke's Donuts. Hi Stephanie, how are you? Good morning, how are you? I'm good. Stephanie, what is the little background of the donuts? Because I have heard donuts are very famous in USA. डोनट बहुत अरसे से पसंद किए जा रहे हैं और उन्हें पसंद करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इन्हें अब सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ी उम्र के लोग भी पसंद करते हैं। And as I have heard that your restaurant, your donut shop is having the most cute variety of the donuts because you have sweet, salty, spicy. From where you got the idea of having this? I like to play with my food, and that goes from home to here. And मैं इसके बारे में ये कहूँगी कि डोनट की पसंदीदगी की कोई हद नहीं है। हम इस वक्त आम और कई दूसरे जायकों और चॉकलेट और मसाले वाले डोनट्स बना रहे हैं, जिनमें दालचीनी के डोनट भी शामिल हैं। हमारे पास मेक्सिको शुगर और दूसरी किस्मों की आइसिंग के डोनट भी मौजूद हैं। इसके अलावा हम रिवायती डोनट भी बनाते हैं। we have our traditional vanilla bean, and we use Madagascar bourbon beans. We have salted caramel. I'm too hungry to just at least see this. So Stephanie is going to teach me how to make a donut, and then I can have a shop of donut in Pakistan as well. Maybe if you're super lucky, you talk to the boss man. We'll see. I'm not making promises on that one. So let's go to Stephanie's kitchen and see how good chef she is, okay? All right, let's go. Let's go. So we are in Stephanie's kitchen and we are actually on the table where Stephanie is going to actually teach us how to make a donut. So Stephanie, what are the ingredients? We have all the essentials. डोनट बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो यहाँ मौजूद हैं। Your flour. ये आटा है, ये मक्खन है, ये खास मक्खन है जिसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, It's really high in fat. Salt. और ये है नमक। Milk. Whole milk, because again, you're not skimping on fat. Milk powder. फुल क्रीम का दूध, खुश्क दूध, अंडे, खमीर, चीनी, पानी और रिवायती डोनट्स में इस्तेमाल होने वाली खुसूसी खुशबुएं। Flavoring that is in traditional donuts. Quick knowledge for you, if you don't know, mace is. मैं आपको ये बताती चलूं कि ये चीज़ मसाले वाली नहीं है, लेकिन उस जैसी लगती है। So it's very similar to nutmeg, but it's not as spicy as nutmeg. Okay. Just for your, future knowledge. Okay. First goes your water. And you want सबसे it to पहले be a हम little इसमें bit पानी warm शामिल करेंगे, इसे हल्का सा गर्म करेंगे so ताकि that इसमें it can खमीर आ activate जाए। the yeast. Next are your eggs and your milk. अब हम इसमें दूध और अंडे डालेंगे। As long as it all gets in there. The eggs are the complete egg, not without the. Correct. It's a whole okay, egg. whole We've egg. just already mixed it up. डोनट में अंडा जर्दी समेत डाला जाता है। And then your sugar goes in. और अब हम डाल रहे हैं चीनी और फिर दूध का पाउडर और अब 2 चम्मच इसके। And the milk powder. And then we need 2 tablespoons of mix. Then we take our handy dandy little paddle up here. It's really heavy. And then, so you mix it together just a little bit. और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और जब ये सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे आटा। And then after this is all incorporated, we'll add our flour. Okay. And we are leaving this for 5 minutes. Yep, we'll leave this for 5 हम minutes. इसे तकरीबन 5 मिनट तक गूंदेंगे, फिर इसके बाद शामिल करेंगे मक्खन और नमक और उसे अच्छी तरह हल होने के लिए मज़ीद 10 मिनट 10 देंगे। more minutes. और जितनी देर में ये फ्लावर मिक्स होता है और अच्छा किस्म का आटा बनता है डोनट्स बनाने के लिए, मैं आपको लिए चलती हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के दिल लाहौर में, क्योंकि वहाँ पर मौजूद है एक ऐसी फूड स्ट्रीट जो कि सालों से कायम है, लेकिन अब भी वहाँ पर आने वाले लोगों की गहमा गहमी किसी हद तक कम नहीं हो सकी है। लाहौर फूड स्ट्रीट इज बेस्ट फॉर इट्स ग्रेट फूड। और मज़े की बात तो ये है कि जब इतना चटपटा खाना आपको एक साथ एक जगह पर मिल जाए तो क्या ही बात है।
रात को फूड स्ट्रीट एक आलीशान फिल्म सेट की तरह दिखाई देती है। लाहौर की इन गलियों को ऐसे खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है कि ना सिर्फ आप अपने खाने से लुत्फानंदोज होते हैं बल्कि इर्द गिर्द के माहौल को भी खूब इंजॉय करते हैं। The ambience is ethnic and traditional. फूड स्ट्रीट पाकिस्तानी और स्पेशली लाहौरी कल्चर का एक हसीन इम्तजाज है। यहाँ सीरी पाए, बारबेक्यू, पराठे, भटूरे, चपली कबाब और बहुत सी अमेजिंग पाकिस्तानी डिशेस दस्तयाब हैं। यहाँ के लोग और उनकी मेहमान नवाजी का भी जवाब नहीं। वाकई लाहौर जिंदा दिल है, जिसका अंदाज़ा इनके रवायती खानों और मिलनसारी से बखूबी लगाया जा सकता है। Okay, so our dough's been mixing for just about 5 minutes now. डोनट के लिए हमारा आटा मिक्स होने में 5 मिनट लगेंगे और इस मौके पर हम इसमें मक्खन शामिल करेंगे। ये चीज़ें भी इसमें डालेंगे और इन्हें एक बार फिर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब ये तैयार है। अब इसमें मुनासिब मिकदार में नमक और खुशबू डाली जाएगी। So we have that and salt. Salt adds important amounts of flavor. It gives it balance. I'm surprised that donuts have salt as well. Everything should have salt, just not a lot of it. हर चीज़ में नमक डाला जाता है। चूँकि ये मक्खन नमकीन नहीं है इसलिए ये बैलेंस हो जाएगा। और अब हम यहाँ डोनट बनाने के लिए तैयार हैं। ये मेज़ इस काम के लिए बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ रोलिंग पैन से मदद लेंगे और थोड़ा सा आटा डालेंगे और फिर ये कटर इस्तेमाल करेंगे और इन्हें इस स्क्रीन पर रख देंगे। ये स्क्रीन फ्रायर में अच्छी तरह फिट हो जाती है। Use your rolling pin, a little bit more flour, and then your handy dandy cutter. Okay. And then it'll wind up on this lovely screen that fits directly in the fryer. One of my chefs taught me. कई साल पहले मेरे एक शेफ ने मुझे बताया था कि इसमें डोनट को हरकत करनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर इसके अंदर डोनट की हरकत बासानी हो रही हो तो ये एक अच्छी चीज़ है। That's a good thing. And then take your little bit of flour in your cutter. और अब आप इसमें थोड़ा सा आटा डालें ताकि डोनट इससे चिपक ना जाएं। अब इसे दबाएं और अब ये बन गया है डोनट। Press down, turn. And then you have a donut and a donut hole. Ready. And it goes in here. For 10 minutes. Yeah. अब यहाँ इसे 10 मिनट के लिए रखें। ये तकरीबन 10-12 मिनट में तैयार हो जाएगा। बस इस पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। More than 2 times they have increased. Yeah. their See how size. they're like really easy to, squish? And how much is the temperature of this chamber? It's 100 degrees. इस चेम्बर का दर्जा हरारत 100 डिग्री है। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो तो डोनट में खमीर सही काम नहीं करता। And they look very pretty. After fry, they will be very tasty donuts, right? Yes. So before we are going to fry these donuts, मैं आपको लाहौर में एक ऐसे रेस्टोरेंट में लिए चलती हूँ जो कि एक बहुत ही मायनाज क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी का है। उन्होंने एक नया रेस्टोरेंट लाहौर में खोला है जिसका नाम है स्प्लाइस। आइए आपको उसकी सैर करवाते हैं।
आज हम हैं एक रेस्टोरेंट की लॉन्च पे जो कि शाहिद अफरीदी ने लाहौर में एक रेस्टोरेंट ओपन किया है स्पाइस के नाम से। सो वी विल गो इनसाइड एंड चेक इट आउट कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। Akmal with us. Umar, how are you? I'm good. उमर बताइए आज आपको लॉन्च कैसी लगी, खाना कैसा था, what's happening? मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है पाकिस्तान में जो ओपनिंग शाहिद भाई ने की है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टार लोग आए हुए थे, स्पेशली जो इमरान भाई आए थे। मेरी बेस्ट विशेज़ इस रेस्टोरेंट के साथ है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। वहाब आप बताइएगा कि कैसा लगा ये इवेंट आपको और ये रेस्टोरेंट खाना सब बताइएगा कैसा रहा? काफ़ी अच्छा था माशाल्लाह, और इट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव रेस्टोरेंट्स ओवर हियर इन पाकिस्तान, एंड आई होप fingers crossed it will be definitely a good project for शाहिद भाई। थैंक यू वेरी मच। हाउ डू यू लाइक दिस इवेंट? खाना कैसा था? ग्रेट, बहुत अच्छा था। एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं, इट्स अ वेरी गुड साइन कि अफरीदी भाई ने हैज ओपनड अप अ ग्रेट रेस्टोरेंट एंड इट्स साउथ अफ्रीकन, दे हैव साउथ अफ्रीकन फूड हियर। It's going to. I think it's the first time that South African food introduced Pakistan. So it's great fun, and everybody's here. Everybody's enjoying. Guys, we have Noori with us. How are you? I'm good, thanks. So, Noori, tell me something about this event. How do you like the food and event? I think the event was pretty all right, but the food was okay. Let's just say that I'm very particular about what I eat. So for me, it was all right. Mama Rana, how are you? I'm fine. How are you? I'm good. So, what do you say about this launch? It's great. It's a very healthy sign that whatever Pakistan is going through, but even then we are opening up these things, and I was very happy. About 3 months back, he discussed it with me that I'm going to do it more by. I'm very happy for him, and I ate here, and it is very nice. And I would like people to come and have dinner here or lunch here. So, how do you like the food? It was great. It was great. It was something different. Thank you very much for being with us. Welcome. So now we are about to fry the donuts. So how much temperature should be of this machine? Our fryer is just about at 360. हम अपने फ्रायर का दर्जा हरारत 360 डिग्री तक रखते हैं। हम डोनट्स को इससे गुजारते हैं और इस पूरे अमल में 1 से 1.5 मिनट लगता है। About a minute and a half. So it's really quick once it gets going. But the temperature is very high. Yeah. Okay. So हमारे पास ये चीज़ है, जब आप इसे क्लिक करते हैं तो वो पूरे रैक को इसके अंदर घुमा देता है। इस अमल में तकरीबन 30 सेकंड लगते हैं। आप इन चीज़ों को डोनट्स हिलाने जुलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। and they fry on this side for about 30 seconds. Okay. And then you essentially use really large chopsticks to flip donuts. डोनट्स की तरह ऐसे बहुत से फूड आइटम्स हैं जो कि दुनिया भर में मकबूल तो हैं ही और पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता मकबूल हो रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से गैर मुल्की भी हैं जो कि पाकिस्तानी खानों को बहुत पसंद करते हैं। आइए ऐसे ही चंद गैर मुल्कियों से आपको मिलवाते हैं। इस्लामाबाद एक पुररौनक शहर है जहां मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। इस शहर का मकामी और गैर मुल्की अफराद की ज़रूरियात पूरी करने में अहम हिस्सा रहा है, लेकिन जहां तक बात है खाने के शौकीन अफराद की, तो बदकिस्मती से इस शहर ने उनको काफ़ी मायूस किया है, क्योंकि इस्लामाबाद अपने रहने वालों को ऐसा मुनफरिद पकवान फराहम करने से अभी तक कासिर है जो इस्लामाबाद की पहचान और पाकिस्तानी सकाफत का अक्कास हो। लेकिन यहाँ खानों की तमाम ही अक़साम बाआसानी दस्तयाब हैं। इसी हवाले से हमने 3 गैर मुल्की खवातीन और एक तजर्बाकार शेफ से पाकिस्तानी पकवान की पसंदीदगी की वजह जानने की कोशिश की। लाहौरी फूड है जो यहाँ पे फॉरनर्स भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और फॉरनर्स के साथ साथ हमारे जो लोकल कस्टमर्स हैं, फैमिलीज़ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। यानी कि अगर वो चाहते हैं कि हमें एक अच्छा खाना जो हमें लाहौर में मिलता था, अब वो कह सकते हैं कि हम एक अच्छा खाना हम इस्लामाबाद में बैठ के खा रहे हैं।
इटली से ताल्लुक रखने वाली खातून जो 1.5 साल से इस्लामाबाद में मुकीम हैं। I cook Italian food, Italian recipes with Pakistani ingredients. मैंने पाकिस्तानी अज्जा के साथ इटालियन फूड और रेसिपीज का तजुर्बा तो किया है, लेकिन पाकिस्तानी खानों का नहीं। मुझे यहाँ की सब्जियाँ बहुत पसंद हैं। इनका जायका बहुत अच्छा है, खास तौर पर तोरी। हम अपनी डिशेस में तोरियों का काफी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तोरियों की बहुत सी किस्में हैं, इनकी कीमत भी कम है और इनकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। इन सब का जायका भी मुख्तलिफ होता है। यहाँ की सब्जियाँ बहुत अच्छी हैं। पार्क्स इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने के बावजूद पाकिस्तानी खानों की दिल दादा हैं। मुझे पाकिस्तान की हर चीज़ बहुत पसंद है। यहाँ की सकाफत, स्टाइल्स, फैशन, कशीदाकारी और यहाँ के खाने, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक पाकिस्तानी डिश ऐसी भी है जिसने पार्क्स के लिए दवा का काम किया। एक दफ़ा छुट्टी के दिन मैं अपने मियाँ के साथ रावलपिंडी गई। उस वक्त मुझे अपने मैदे पर दबाव सा महसूस हो रहा था और तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं थी। वहाँ लोगों ने मुझे पाए का शोरबा खाने का मशवरा दिया। मैंने पहली बार पाए खाए और एक प्याला खाते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे वो बहुत अच्छे लगे। After I eat that, like the whole soup, I feel really good. स्टेसी विंडसन अक़वाम मुत्तहिदा में मुलाजमत करती हैं और 2 साल से पाकिस्तान में मुकीम हैं। स्टेसी वेजिटेरियन होने के बावजूद पाकिस्तानी खानों को बेहद पसंद करती हैं। Often people ask me, is it difficult to be a vegetarian in Pakistan? And मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सब्जियां आसानी से नहीं मिलती, लेकिन मैं उन्हें बताती हूँ कि यह हकीकत नहीं है, क्योंकि इस मुल्क की सब्जियां और फल बहुत शानदार हैं। इस मुल्क में रहना और यहाँ की सब्जियों और फलों को अपनी खुराक में शामिल करना बहुत आसान है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मार्केटों और रेस्टोरानों में खाने पीने की चीज़ों की अफरात है और वो बआसानी मिल जाती हैं। मुझे यहाँ के मसाले भी बहुत पसंद हैं। and in the restaurants, so it's and I love the spices as well. खानों के अलावा एक बात जो स्टेसी को पाकिस्तान के बारे में पसंद है वो पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी है। You will find people from Pakistan wherever you go, and आप पाकिस्तान में चाहे जहाँ भी जाएं, यहाँ हर जगह के लोग, चाहे वो गरीब हो या अमीर, बहुत मेहमान नवाज और दूसरों का ख्याल रखने वाले हैं। उनके पास खाने को चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि वो अपने इलाके या घर में आने वाले शख्स को इसमें शरीक न करें। amounts of food they have, they always share with those visitors that come to pass through their communities and neighborhoods and families in their homes. पाकिस्तानी अवाम ने ये बात जरूर साबित कर दी है कि वो मेहमान नवाजी में किसी से पीछे नहीं। वक्त और हालात जैसे भी हों, अपने मेहमान की खातिर तवाज़ो किए बिना जाने नहीं देते। और यही वो सिफ्त है जो किसी कौम को अक़वाम आलम में मुमताज़ हैसियत देने में अहम किरदार अदा करती है। जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को आलमी सतह पर पेश किया जाए। ये है वॉशिंगटन डीसी का वाटरफ्रंट एरिया और उसकी सी फूड मार्केट। बहुत सारी ऐसी मछलियाँ और बहुत सारी ऐसी सी फूड्स जो कि हमारे मुल्क में नहीं खाई जाती हैं या फिर सोचने में भी बहुत अजीब लगता है, जैसे शार्क्स या फिर ईल्स। यहाँ पर लोग उसे बहुत ही ज़ौक़ शौक़ से ना सिर्फ ख़रीदते हैं बल्कि खाते भी हैं। तो आइए इस सी फूड मार्केट की आपको सैर करवाते हैं। इस मार्केट के अंदर बहुत सारी शॉप्स मौजूद हैं, जिसमें से एक शॉप है जेसी टेलर सी फूड, जिसके स्टैनली हमारे साथ मौजूद हैं। स्टैन से बात करते हैं। हेलो स्टैन, हाउ आर यू? Good, how about you? I'm good. I want to know, you have so many branches here in this area. So what kind of different variety of seafood you are offering to the people? Well, we offer live crabs, all kinds of shrimp from Gulf shrimp, saltwater. हम यहाँ समुद्री पानी, ताज़ा पानी और फार्मों में पाली हुई हर साइज और हर किस्म की मछलियाँ, बड़े केकड़े और हर किस्म के झींगे फरोख्त करते हैं। हमारे पास ताज़ा पानी की मछलियों की तमाम इकसाम भी मौजूद हैं। ये मछलियाँ मुख्तलिफ साइज़ों और वैरायटीज़ में दस्तयाब हैं। हमारे पास आबी खुराक मौजूद है। little bit of everything, crab legs, Dungeness crabs, so pretty good selection. I have heard that you also have the sharks or sometimes eels are also sell here. So why the people are usually preferring, because usually if we think about fishes, so eel and shark are a little weird. I'm sorry. Eel and shark are a little strange to They eat. are. So how the people love to eat them? Well, I mean, you live in the area right here, DC, is surrounded by a whole different group of people.
वाशिंगटन डीसी में मुख्तलिफ इलाकों, पस मंज़र और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। उनकी पसंद भी मुख्तलिफ है। शुरू में मुझे पता नहीं था कि उन्हें गाहक कैसे बनाया जाए। फिर हमने खानों में उनकी पसंद को सामने रखते हुए ग्रिल और ओवन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। This house is in an area with a lot of people from a lot of different backgrounds. What's the price range of these exotic fishes which you have? Is there any certain price range, or they are like a little expensive for the people? Well, the thing with seafood, I mean, the market value could change daily. मार्केट की कीमतें हर रोज तब्दील होती रहती हैं। इसका ताल्लुक मौसम से होता है। अगर तूफान और तेज हवा की वजह से पानी में जाना खतरनाक हो तो कीमतें ऊपर चली जाती हैं, खास तौर पर केकड़ों की। लेकिन हमारी कीमतें मुनासिब होती हैं। Which is the most expensive fish which you have on your shop? Most expensive fish as far ये मेरी दुकान में सबसे महंगी मछली है और इसका नाम है सी बैस। Sea bass. Okay, but why is it so expensive? Is the taste is very different? Taste is very good. Plus it comes from Chile. इसका जायका बहुत अच्छा है, खास तौर पर मिर्चों के साथ। ये बहुत शानदार है। Real good fish. Plus a lot of restriction on there. It can only be a certain size. Can't be so small. It can't be so big. So it's really a rare item. And is there any special variety which a few days ago or a few months ago you have introduced in your shop? Well, like the fish roll. That's seasonal. हाँ, हमारी कुछ नई डिशेस हैं, लेकिन हम ज्यादातर मौसम के मुताबिक ऐसे डिशेस पर तवज्जो देते हैं जिन्हें हर रोज ग्राहकों को पेश किया जा सके। But there's things like that, you know, seasonal like the roe and stuff like that. But for the most part, we try to keep things here every day. Thank you, Stan. Thank you so much. You have a great day. Thank you. So, और अब हम आम के जायके और खुशबू वाले डोनट बनाने लगे हैं। क्या आप भी मेरा साथ देंगी? I'll try to. I don't want to mess with the things, but I'll try to. So this is the easy part. Okay. You take your donut, you flip it over, you dip. ये इस काम का सबसे आसान हिस्सा है। आप डोनट लें, उसे उल्टा करें और फिर इसमें डुबोकर बाहर निकालें। और ये है हमारे आम, और इस गार्निश में शामिल है खुश्क दूध और दूसरी क्रंची चीज़ें और थोड़ा सा मक्खन, नमक, मसाला और वनीला वगैरह। इसके बाद हम इसे ओवन में पकाएंगे और इसे डोनट के ऊपर छिड़क देंगे। And then we toast it in the oven, and then you just sprinkle it on top. After making the mango curry, we have another recipe. So what is this recipe which we are making today? This is our sexy Mexi donut. This is what's called a hopper. And in our hopper, we have our chocolate pastry cream. And so ये हमारा मैक्सी डोनट है। इसे हॉपर कहा जाता है और इसके अंदर एक खास चॉकलेट भरी होती है। इसे डोनट पर डालकर आप बटन दबाते हैं और बटन दबाते ही ये डोनट को चॉकलेट से भर देता है। इसके बाद आप इसमें खुशबू शामिल करते हैं। इसे ऊपर से पकड़कर इसमें डबोएं, जैसा कि आपने इससे पहले किया था, और ये इस पर चिपक जाएगा। And then sit there, and it has a nice little sheen to it. Here we have a bag of melted chocolate. Beautiful. Cross your T's and dot your I's always. It's looking so cute. Thank you. You're very welcome. Thank you so much. Stephanie is one of the best chefs, I will say, because the variety that she has shown on the donuts, I'm so surprised. Thank you so much, Stephanie, for coming in our show. Thank you for having us. और सना एक पाकिस्तानी के आज के इस एपिसोड से मुझे इजाज़त दीजिए। डोनट्स ना सिर्फ अमेरिका बल्कि अब दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल हैं, लेकिन किस तरह से बनाए जाते हैं और कितनी वैरायटी इसकी अभी अमेरिका में मौजूद है, आज के इस शो में हमने आपको यही दिखाने की कोशिश की है। अगले शो में एक नई जगह, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।